السلام علیکم ایم جے ٹی وی میں خوش آمدید 12 اکتوبر 1972 کو ایک طیارہ فلائٹ 571 انڈیز کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا جس میں 45 افراد سوار تھے جن میں یوروگوئے کی رگبی ٹیم بھی شامل تھی۔ وہ 72 دنوں تک پھنسے ہوئے تھے۔ انہیں ہائی فریزنگ ٹمپریچر اور کم خوراک کا سامنا کرنا پڑا، ساتھ ہی انہیں زندہ رہنے کے لیے سخت فیصلوں کا انتخاب بھی کرنا پڑا، جیسا کہ ان لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنے مردہ دوستوں کا گوشت تک کھانا پڑا۔ پھر آخر میں ان 45 افراد کے ساتھ کیا ہوا، یہ یوروگوئن ایئر فورس کی فلائٹ 571 کی کہانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈیز فلائٹ ڈیزاسٹر کی گہرائی کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسی کہانی جس میں بہادری، طاقت اور ایک ایسا فیصلہ دکھایا گیا جو آج بھی لوگوں کو چونکا دیتا ہے۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یوروگوئے کی ایک رگبی ٹیم نے میچ کے لیے مونٹیویڈیو یوروگوئے سے سینٹیاگو چلی جانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یوروگوئن ایئر فورس کے ساتھ فیئر چائلڈ 227D پلین کو چارٹر کیا۔ اس پلین میں 45 افراد کے لیے جگہ تھی، اس لیے اس ٹیم نے اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کو اس سفر میں اپنے ساتھ شامل کیا۔ یہ پرواز 12 اکتوبر 1972 کو روانہ ہوئی، لیکن انڈیز کے پہاڑوں میں خراب موسم نے انہیں اگلے دن تک ارجنٹائن کے مینڈوزا میں رکھنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ سینٹیاگو تک براہ راست ایک چھوٹا سا راستہ تھا، پہاڑ اونچے تھے، لیکن پھر بھی ہوائی جہاز کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ محفوظ طریقے سے اڑایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بجائے پائلٹس نے پہاڑوں سے بچنے کے لیے پہلے جنوب، پھر مغرب اور آخر میں شمال کی طرف جانے والے ایک لمبے راستے پر اڑنے کا منصوبہ بنایا۔ 13 اکتوبر کو موسم زیادہ بہتر نہیں ہوا، لیکن انہوں نے بہرحال پرواز کے دوران موسم بہتر ہونے کی امید میں ٹیک آف کرنے کا فیصلہ کیا۔ پائلٹس نے جنوب میں ریڈیو بیکن کی طرف اڑان بھری اور زمینی کنٹرول کو اپنی پرواز کا راستہ بتا دیا۔ پہاڑوں کو عبور کر کے چیلی میں داخل ہونے کے بعد انہیں شمال کی طرف مڑنا تھا اور سینٹیاگو میں اترنے کے لیے نیچے جانا شروع کرنا تھا۔ وہ انڈیز کے پہاڑوں سے اونچے اڑ رہے تھے، لیکن گھنے بادلوں کی وجہ سے وہ نیچے زمین نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ اس پلین کا تھا، یہ پلین اس ٹرپ کے لیے آئیڈیل نہیں تھا۔ اس پلین کو دوسرے پائلٹس نے لیڈ سلیج کا نام دیا تھا کیونکہ یہ تھوڑا سا سست تھا اور اس میں پوری طرح موڈیفیکیشن کی گئی تھی۔ پلین کے درمیان میں ایک پورا حصہ شامل کیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پلین میں لے جایا جا سکے۔ گھنے بادلوں کی وجہ سے پائلٹ زمین کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے پائلٹس کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ڈیوائسز پر انحصار کرنا پڑا۔ لیکن بدقسمتی سے کو پائلٹ لیگورورا نے ایک غلطی کر دی۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک خاص مقام کیوریکو کے بالکل قریب ہے، جبکہ وہ حقیقت میں اس لوکیشن کے قریب بھی نہ تھے۔ اس نے کم اونچائی پر اترنے کی اجازت مانگی، حالانکہ وہ ابھی بھی پہاڑوں کے بالکل قریب تھے۔ چیزیں تیزی سے خوفناک ہو گئیں۔ پلین کو گھنے بادلوں اور خراب موسم کی وجہ سے ہوا کا ایک زوردار جھٹکا لگا، جس سے مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ پائلٹس نے حادثے سے بچنے کے لیے پہاڑ کے اوپر برف پر لینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ پلین کئی بار پہاڑ سے ٹکرا گیا، جس سے اس پلین کا ٹیل سیکشن اور رائٹ ونگ ٹوٹ گیا۔ یہ پلین حرکت کرتا رہا یہاں تک کہ یہ ایک بڑی چٹان سے ٹکرا گیا۔ لیفٹ ونگ کے پھٹنے کی وجہ سے کچھ مسافر پلین سے باہر گر چکے تھے۔ اس کے بعد یہ پلین برف سے ٹکرا گیا، سیٹیں ڈھیلی ہو گئیں اور کاکپٹ کچل دیا گیا، جس سے پائلٹ فوری طور پر ہلاک ہو گیا۔ یہ پلین انڈیز کے پہاڑوں کے دور دراز علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جب پلین کا ٹیل سیکشن پھٹ گیا تھا تو وہ کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے اڑا، جن میں 3 مسافر اور 2 کریو ممبر شامل تھے۔ اس کے علاوہ 2 اور لوگ، ڈینیل شاہ اور کارلوس ویلٹ، پلین کے پچھلے حصے میں گیپنگ ہول سے باہر گر کر مر گئے تھے۔ یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ پلین کے اندر کی سیٹس پہاڑ کے ٹکرانے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے پلین میں سوار لوگ پلین کے اگلے حصے کی طرف پھسل گئے، جس کی وجہ سے مزید یہ 4 افراد ہلاک ہوئے۔ مجموعی طور پر 45 میں سے 33 افراد اس حادثے میں بچ گئے، لیکن بچ جانے والے لوگ بری طرح انجرڈ ہو گئے تھے۔ کچھ کی ٹانگیں اس حادثے میں ٹوٹ گئیں اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سیریس انجریز ہوئیں۔ پلین پر موجود 2 میڈیکل اسٹوڈنٹس کینیسا اور زربینو نے فوری طور پر سب کے زخموں کا علاج کیا۔ زندہ بچ جانے والے لوگوں میں سے ایک نینڈو فریڈو کے سر پر شدید چوٹیں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ 3 دن تک بے ہوش تھا۔ اس کے علاوہ انرک پلیٹریرو کے پیٹ میں میٹل کا ایک ٹکڑا پھنس گیا تھا، جس کے ہٹانے پر اس کی کچھ آنتیں پھٹ گئی تھیں۔ ان اسٹوڈنٹس نے اپنی چوٹوں کے باوجود دوسروں کی مدد کی۔ پلین کے لاپتہ ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر چلی سے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کو طلب کر لیا گیا۔ انہوں نے چلی کے ایک مخصوص پوائنٹ پر اس پلین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، جہاں ان کے خیال میں یہ پلین پرواز کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سرچ آپریشن کو اور بھی تیز کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیم کا خیال تھا کہ یہ پلین پہاڑوں میں کہیں دور دراز مقام پر گر کر تباہ ہوا ہوگا، اس لیے ریسکیو ٹیم نے چلی میں ایک اور ریسکیو گروپ سے مدد مانگی، مگر بدقسمتی سے ریسکیو ٹیم اس پلین کو غلط لوکیشن پر ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ پلین دراصل ارجنٹائن میں گر کر تباہ ہوا تھا، لیکن ابھی تک ریسکیو ٹیم میں کسی کو بھی اس
बात का इल्म न था। अगले दिन चिली, अर्जेंटीना और यूरुग्वे की रेस्क्यू टीम ने इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इनमें से कुछ तैयारों ने हादसे वाली जगह पर बगैर कुछ देखे सीधी परवाज की। इन रेस्क्यू प्लेन्स को देखकर सर्वाइवर्स की जान में जान आई। इन्होंने क्रैश प्लेन की छत पर लिपस्टिक की मदद से SOS पैगामात लिखे। इन लोगों ने इशारा और चीखे मारने की कोशिश की। इन्होंने अपना सामान भी क्रॉस की शक्ल में रखने की कोशिश की, लेकिन किसी भी रेस्क्यू प्लेन ने इन इशारों को नहीं देखा, क्योंकि रेस्क्यू प्लेन इनसे बहुत ऊपर थे। अफसोसनाक तौर पर पूरे एक हफ्ते की सर्च ऑपरेशन के बाद सख्त कंडीशन और जिंदा बच जाने की नाउम्मीद होने की वजह से रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन खत्म कर दिया, ये सोचते हुए कि जहाज में मौजूद हर शख्स की मौत हो गई होगी। रेस्क्यू टीम की वापसी ने जमीन पर मौजूद सर्वाइवर्स को मजीद परेशान कर दिया, क्योंकि यही रेस्क्यू टीम इनके बचने की उम्मीद थी। हादसे के पहले हफ्ते में कुछ लोग शदीद इंजरीज की वजह से हलाक हुए। इस हादसे में मरने वालों की टोटल तादाद 12 हो गई। मरने वालों में को पायलट लागुरोरा भी शामिल थे। बाकी 28 बच जाने वाले सर्वाइवर्स ने मिलकर तैयारे के मलबे से शेल्टर बनाने के लिए काम किया। इन्होंने टूटी हुई सीट और दीगर मलबे को निकालकर एक छोटी सी जगह बनाई, जो कि तकरीबन 8 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी थी। इन्होंने हवाई जहाज के पिछले हिस्से को हवा से रोकने के लिए सामान, बच जाने वाली सीट्स और यहाँ तक के बर्फ का भी इस्तेमाल किया। सर्वाइवर्स में से एक पीटू स्ट्राउच ने सूरज की तपिश को इस्तेमाल करते हुए पानी जमा करने का एक आला बनाया। इसने कुछ मेटल शीट्स ली जो कि सीटों के नीचे मिली और उनसे एक वाटर कलेक्टर बनाया। इसे ये भी एहसास हुआ कि बर्फ उन्हें अंधा कर सकती है, इसलिए उसने हवाई जहाज के कॉकपिट से सबज प्लास्टिक से आरजी सन ग्लासेस बनाई। ये लोग रात को गर्म रहने के लिए सीट कवर इस्तेमाल किया करते हैं। रग्बी टीम के कैप्टन मार्सिलो पेरेज ने ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल ली। सर की चोट से बेदार होने के बाद नैंडो फेराडो के लिए हालात खासे तौर पर मुश्किल थे, क्योंकि इस हादसे में उसकी माँ भी मर गई थी और इसकी बहन सुजेना हादसे के 9 दिन बाद बुरी तरह जख्मी होने की वजह से चल बसी। रात को शदीद सर्दी थी और टेम्परेचर भी -22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया था। सर्वाइवर ने ऐसी सर्दी पहले कभी ना देखी थी और ना ही ऐसी कंडीशन का इनके पास कोई एक्सपीरियंस था। इनके पास मदद की बहुत कम चीजें बची थी और साथ में इनके पास खाने की चीजें भी बहुत कम थी। उन्हें 8 चॉकलेट बार्स, 3 छोटे जेम जार, बादाम का एक टिन, चंद खजूरे, कुछ कैंडीज, ड्राई बेरीज और शराब की कुछ बोतलें बची थी। इन्होंने इस खाने पर बहुत गुजारा किया, लेकिन ये खाना सिर्फ एक हफ्ते तक ही चला। वो जानते थे कि रेस्क्यू टीम इनको बचाने नहीं आ रही और खाना खाने के बगैर इनकी मौत यकीनी थी। इस खौफनाक सूरत हाल में सर्वाइवर ने एक अहम फैसला किया। उन्होंने अपने मरे हुए दोस्तों का गोश्त खाने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि मरने वाले ज्यादातर लोग इनके दोस्त या इनके खानदान के अफराद थे। सबसे पहले रॉबर्टो ने जहाज की टूटी हुई खिड़की से शीशे तोड़कर उससे लाशों से गोश्त काटने का फैसला किया। उसने अपने आप को गोश्त खाने पर मजबूर किया और सबको दिखाया कि इस किस्म का गोश्त खाने से वो बिल्कुल ठीक है। अगले चंद दिनों में बहुत से सर्वाइवर ने रॉबर्टो को फॉलो किया और मुर्दा लाशों के गोश्त को खाने लगे। लेकिन फिर 29 अक्टूबर की रात हादसे के 17 दिन बाद एक बर्फानी तोदा उस वक्त प्लेन पर गिरा जब ये सारे सर्वाइवर सो रहे थे। इस बर्फानी तोदे ने प्लेन को पूरी तरह बर्फ से भर दिया, जिसकी वजह से ये 8 अफराद हलाक हुए। बर्फानी तोदे ने इस प्लेन को तकरीबन छत तक भर दिया था, जिसकी वजह से बच जाने वाले लोगों को बहुत कम हवा मिल रही थी। नैंडो फेराडो ने ताज़ा हवा हासिल करने के लिए कॉकपिट की खिड़की खोलने के लिए मेटल पोल्स का इस्तेमाल किया। वो 31 अक्टूबर को सतह पर एक सुरंग खोदने में कामयाब हो गए, लेकिन बर्फानी तोदे ने उन्हें वापस अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। बर्फानी तूफान 3 दिन तक जारी रहा। इस बर्फानी तूफान के बाद केंसा की क़यादत में कुछ जिंदा लोगों का ख्याल था कि उनका बेहतरीन मौका मदद के लिए टीम को भेजना है। सर्वाइवर में बहुत से लोगों को अपने आप पर यकीन न था। उन्हें ये खदशा था कि वो इतने मजबूत नहीं है, लेकिन बिल आखिर केनिसा, पेराडो और वेसिंगटन को इनकी ताकत और सेहत के लिए मुंतखब कर लिया गया। उन्हें इस मिशन के लिए ज्यादा गर्म कपड़े और खाना दिए गए। वो इस मिशन पर रवाना होने से पहले बेहतर मौसम का इंतजार कर रहे थे। इनका असल मंसूबा चिली जाने का था, लेकिन इन्होंने पहाड़ से बचने के लिए अपनी डायरेक्शन बदली। उन्हें उम्मीद थी कि वो जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं वो उन्हें चिली की तरफ ले जाएगा। उन्हें चंद घंटे के बाद इस प्लेन की टेल मिल गई, जिसमें अभी भी सामान मौजूद था, जिसमें चॉकलेट का एक डब्बा, गोश्त की पेटीज, रिम की एक बोतल, सिगरेट, इजाफी कपड़े, कुछ दवाइयाँ और सबसे अहम हवाई जहाज की बैटरियाँ मौजूद थी। उन्होंने रात वहीं गुजारी। अगले दिन वो ईस्ट की तरफ चलते रहे, लेकिन दूसरी रात तक वो बर्फ से जम चुके थे। उन्होंने बैटरीज को हासिल करने के लिए टेल के हिस्से की तरफ वापस जाने का फैसला किया, इस उम्मीद पर कि वो मदद के लिए रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इसमें एक बड़ा मसला था। हवाई जहाज के रेडियो को खास किस्म की बिजली 115 वोल्ट AC की जरूरत थी, और जबकि इनके पास जो बैटरियां थी वो मुख्तलिफ किस्म की 24 वोल्ट DC थी। रॉय हार्ले, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा कुछ जानता था, वो रेडियो को ठीक करने
में नाकाम रहा, इसलिए उसने हार मान ली और ये सोचकर जहाज के मरकजी हिस्से में वापस चले गए। वापसी पर वो बर्फानी तूफान में फंस गए। हार्ले ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फेराडो उसे आगे बढ़ने पर राजी करता रहा और आखिरकार वो उसे दूसरों के पास वापस भेज देते हैं। इस दौरान मजीद और अमवात हुई। आर्ट्यूरो और राफेल इंजरीज की वजह से मर गए और न्यूमाट और केटी इंसानी गोश्त न खाने की वजह से भूख की वजह से मर गया। वो मरने वाला आखिरी शख्स था। जिंदा बच जाने वालों को अब एहसास हुआ कि उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने इर्द गिर्द के पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन शेल्टर्स के बगैर रात को बहुत सर्दी थी, लिहाजा उन्होंने प्लेन इंसुलेशन, बिजली की तारों और वाटर प्रूफ कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा स्लीपिंग बैग बनाया। 12 दिसंबर को पेराडो, केनिन्सा और वेसेंटन ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। टूटे हुए हाइट मीटर की वजह से सर्वाइवर ने सोचा कि वो 2100 मीटर ऊंचाई पर हैं, जबकि दर हकीकत वो 3664 मीटर ऊंचाई पर थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने क्यूरिको को क्रॉस कर लिया है, जिसकी वजह से वो सोचते गए कि मदद वेस्ट की तरफ है, इसलिए वो सिर्फ 3 दिन का खाना लेकर आए थे। इनके पास चढ़ने का ना कोई सामान, नक्शा, कंपास या तजुर्बा नहीं था। इन तीनों ने 3570 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर से चढ़ना शुरू किया। कोई आसान रास्ता इख्तियार करने के बजाय वो सीधा एक खड़ी ढलान पर चले गए। उनका ख्याल था कि वो एक दिन में चोटी तक पहुंच सकते हैं। तीसरी सुबह केनिन्सा पीछे रहा, जबकि वेसेंटन और पेराडो ने अपना सफर जारी रखा। उन्हें तकरीबन 100 मीटर ऊंची बर्फ की एक दीवार का सामना करना पड़ा। पेराडो ने दीवार में कदम बनाए और वेसेंटन से पहले 4503 मीटर ऊंचाई पर एक चोटी पर पहुंचा, लेकिन उन्हें हैरत का झटका तब लगा जब उन्होंने चिली की सब्ज वादियों को देखने के बजाय एंडलेस बर्फपोश पहाड़ देखे। ये मंजर देखकर वो मायूस हो गए, लेकिन इस मायूसी की हालत में उन्हें एक उम्मीद नजर आई। इन बर्फपोश पहाड़ों में दूर 2 वाजिया चोटियां दिखाई दे रही थी, जिनके दरमियान एक वादी थी। पेराडो रास्ता तलाश करने के लिए पुरअज़्म था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये सफर बहुत लंबा है, इसलिए इन दोनों ने वेसेंटन को हवाई जहाज की सीट को स्लेज के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बेस कैंप की तरफ वापस भेज दिया और पेराडो और केनिन्सा नीचे उतरते ही वादी की तरफ चोटी के पीछे चलते गए। कई किलोमीटर्स का सफर तय करने के बाद उन्हें दूर एक दरिया दिखाई दिया। दरिया का मतलब पानी, पानी का मतलब जिंदगी। पेराडो और केनिन्सा ने इस दरिया को फॉलो करते हुए मजीद 7 दिन तक पैदल सफर किया। उन्हें इंसानी जिंदगी के आसार मिले, जैसे कि खाली सूप का डब्बा और आखिरकार एक गाय। केनिन्सा अब बहुत थक चुका था, इसलिए इन दोनों ने अभी आराम का फैसला किया। आराम करते हुए इन दोनों को दरिया के किनारे दूसरी तरफ एक घोड़े पर सवार शख्स ने देख लिया। इस शख्स को देखकर इन दोनों की जान में जान आई। इन दोनों ने उस शख्स की तरफ चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वो शख्स दरिया के दूसरे किनारे पर था और इनसे बहुत दूर था। लेकिन उस शख्स को इन दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उस शख्स ने अगले दिन पत्थर को कागज में लपेटकर इनकी तरफ फेंका। इन दोनों ने अपना पूरा हाल उस कागज पर लिखा और उस शख्स की तरफ फेंका। ये घुड़सवार इन दोनों की मदद के लिए 10 घंटे वेस्ट की तरफ सवारी करता गया। फिर रास्ते में इस घुड़सवार ने एक और शख्स से मुलाकात की। इस घुड़सवार ने उस आदमी से कहा कि वो बच जाने वालों की तरफ सवार होकर उन्हें लॉस मेंटोस गांव ले आए। इसके बाद वो घुड़सवार हुकाम को आगाह करने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ गया। पेराडो और केनिन्सा लॉस मेंटोस गांव पहुंच चुके थे, जहां उन्हें खाना और आराम दिया गया। इन दोनों ने 10 दिनों में 33.5 मील का सफर तय किया। चिली की फिजाइया ने रेस्क्यू में मदद के लिए 3 हेलीकॉप्टर भेजे। हेलीकॉप्टर 22 दिसंबर 1972 को क्रैश साइट पर पहुंचे। वजन की हद की वजह से बच जाने वाले में से सिर्फ आधों को पहले सफर पर रेस्क्यू किया गया। फिर दूसरे दिन सुबह को रेस्क्यू टीमों ने दूसरे सेट को भी रेस्क्यू कर लिया। आखिर में सर्वाइवर्स को हादसे के 2.5 माह बाद 23 दिसंबर 1972 को बचा लिया गया। फ्लाइट 571 के हादसे के बाद बच जाने वाले लोगों को जिस्मानी और जज्बाती चैलेंजों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने दोस्तों और खानदान के मेंबरान के नुकसान का सामना भी करना पड़ा जो इस हादसे में मर गए थे। उम्मीद है MJTV की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।